Hello and welcome students in today's class. I hope you are doing well. Today we are going to start our supplementary reader book, that is Movement. There are many good stories in this book. Today we will read the story, that is our first story, The Lost Child. From this title we will come to know that there is a child who lost in this story, and this story is written by Mulkraj Anand. So in the story, once a child goes to the fair in spring season with his parents. You know, spring season comes after winter season in the month of February or March. So people generally goes to fair, shows or somewhere in this season because they get bored staying at home in winter. So just they go in a fair or somewhere. A child wants to buy many things there such as sweets, balloon, flowers, etc. But he was refused to buy all the things by his parents. They said that you don't buy all the things, these things are not important. So in this way all the things were refused to buy for that child, so he didn't buy anything. And in between roaming here and there, he was lost and tried to search his parents. So he was lost there and he was searching his parents, but he didn't find. In between he met with a person who was ready to offer him everything he wishes. The person was ready to give all the things. He offered him flowers, sweets, balloons and so many things. But the child refused to get all the things. He said that I don't want anything, I want my parents. He insisted to find his parents back instead of any other things. So the story tells us that the value of everything is zero in place of our parents. If our parents are not there, then there is no value for other things. Sometimes we miss so many things in our life. We try to buy some things, but imagine that if your parents are not there with you, so you will reject all the things, you will not buy anything. Why? Because parents are most important part in our life. That that's the writer wants to tell here. So we will study the story. So let's get started. The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? So there was a child who goes to the fair with his parents, and he was very happy and excited and he wanted to buy so many things there. He wanted to buy sweets, he wanted to buy toys also which were displayed there. But his parents refused that, they don't buy anything for him. And after in the story, why then the child refused to take all the things when someone offers him? What is the reason of this question? That we will come to know in this story. It was the festival of spring. So there was a festival of spring, means the winter season was ended and spring season comes in February or March. So what happens here? Actually people generally stay at home in winter season. They don't roam here and there outside. They think about their skins and so many other things. So here after ending this season, people want to go outside and they just want to enjoy something. So that's why the people were going outside. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. So emerge means to come out, gaily means happy, and clad means people. Sorry, clad means we can say cloth. So from that wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. So the peoples were going from different type of lanes, areas. Everyone were going to the fair in the spring season. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. So the peoples were going by walk. They were riding horses. Some were sitting. They were carrying by bamboos and bullock carts. So there were different kinds of modes of traveling. They were traveling by walk, by horses एंड बाय बुलक कार्ट. सो कुछ जो भी जिनके पास है उस मोड से वो जा रहे थे जैसे उनको पॉसिबल है. कुछ लोग तो पैदल जा रहे थे, कुछ लोग हॉर्स के ज़रिए जा रहे थे. तो इस प्रकार से लोग
सारे जा रहे थे वहाँ पे. वन लिटल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. सो देर वॉज अ लिटल बॉय हु वॉज running between his father's leg and he was brimming over with life and laughter. So brimming over means he was so much happy, बहुत ज़्यादा खुश था वो, and with laughter and life he was enjoying that. In this picture you can see a boy with his parents. He is enjoying and he wants to buy so many things here. So he was quite happy there. बहुत ज़्यादा खुश था वो बच्चा, क्योंकि उसे बहुत अच्छा फील हुआ था जब वो फेयर में जा रहे थे. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined in the way. So, his parents called him. Why? Because he was lagged behind. Lagged behind means he was left behind. पीछे ही रह चुका था वो. Fascinated means attracted by the toys in the shop that lined in the way. So, his parents called him. Why? Because he was left behind. He remained behind. He was observing toys in the shops. जो टॉयज थे, बहुत सारे खिलौने, वो देख के वहीं पे वो रुक गया था. ही वॉज अट्रैक्टेड टू द टॉयज. यू नो, चाइल्ड स्पेशली अट्रैक्टेड वेन एवर दे सी टॉयज. सो बच्चों को तो बहुत अट्रैक्शन होता है टॉयज़ का. सो जब उसने टॉयज देखे वो वहीं पे खड़ा रह गया. सो उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ लगाई कि कम चाइल्ड कम, चलो बेटे आ जाओ अभी, ऐसा उन्होंने कहा. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट्स ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. सो he accepted that order, he followed that order, वो obedient था. He followed the order and he was going towards his parents, but still he was looking towards the toys. He was going ahead but looking back to the toys. So वो तो आगे चल रहा था but lingering, यानी पीछे वो उसका जो देखना था वो पीछे ही देख रहा था टॉयज़ की तरफ. चल आगे रहा है लेकिन टॉयज़ की तरफ देख रहा है वो, जो वहाँ पे टॉयज़ सारे थे. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. So when they come at the end point, means where they were stopping, at that point the child could not hide his intention. Actually he knew that his parents will not buy anything for him. उसको पता था कि पेरेंट्स तो मुझे कुछ भी लेके नहीं देने वाले हैं, बट उसकी जो विश है, जो उसको सप्रेस नहीं कर पाया. वो सप्रेस का मीनिंग क्या होता है, उसको स्टॉप नहीं कर पाया. उसकी जो भी विश थी उसे खरीदना ही था वो. तो उसने बोल दिया उसके पेरेंट्स को, जो उनको पता था कि अच्छे से रिफ्यूज़ किया जाएगा, बिकॉज उनका कोल्ड नेचर था. कोल्ड नेचर क्या होता है कि विदाउट फीलिंग ऑफ अफेक्शन, कि किसी प्रकार की प्यार की फीलिंग उसमें नहीं होना. सो ही वॉज वेल नोन विद दिस बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स. उसको पता था मेरे पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट है, मुझे कुछ भी खरीद के नहीं देंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड. सो ही रिक्वेस्टेड डैडी एंड मम्मी, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय पसंद है, मुझे वो टॉय चाहिए. हिज फादर लुक एट हिम रेड आइड in his familiar triumphant way. So his father looked angrily to him. उसको बहुत गुस्से से देखने लगे उसके पापा, रेड आई करके. जो उसके फैमिलियर था वो टायरेंट्स वे, यानी क्रूअल रूलर जो होता है ना, एक आधा जो किंग होता है बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करने वाला, अच्छे से बिहेव नहीं करने वाला, उस प्रकार से उसके पिताजी का बिहेवियर था. बहुत ही गुस्से से उसको देखा उन्होंने. हिज मदर मेल्टेड बाय द free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. So her mother melted means she became loving and tender. उसने उनकी मम्मी ने थोड़ा प्यार जताया वहाँ पे, because his father was angry on him. So that's why his mother showed some feeling of love. She said that look what is in front of you. देखो वहाँ पे क्या है. उसके हाथ को पकड़ के उसकी मम्मी लेके जाती है खेत की तरफ, और उसे कुछ खेत दिखाती है, मस्टर्ड फील्ड दिखाती है, जो सरसों का खेत होता है, कि देखो तुम्हारे सामने क्या है. जनरली ऐसा ही होता है कि बच्चे अगर कुछ चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं तो माँ बाप को लगता है कि इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं कहीं और, किसी दूसरी चीज़ की तरफ अगर हम उसको डाइवर्ट कर देंगे तो वो भूल जाएगा. और ऐसा ही बहुत बार होता है. वेन एवर वी इंसिस्ट टू बाय समथिंग, आवर पेरेंट्स टेल अस लुक देयर, लुक हियर,
हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ और समथिंग लाइक दैट। वो ऐसे बिहेव करते हैं कि उनको लगता है कि हमारा जो ध्यान है दूसरी तरफ चला जाएगा और हम उस चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ के लिए हम डिमांड नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उसकी मम्मी ने उसको डाइवर्ट कर लिया उसका माइंड। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. So there was a mustard field, जो सरसों का खेत था, कलरलेस था वो सरसों का खेत पूरी तरह से, और उसकी तरफ वो देखने लगे। एंड इट वाज लाइक अ गोल्ड, बहुत दूर तक लैंड दिख रही थी सरसों के खेत की। तो उसकी मम्मी जो है उस बच्चे को दिखाती है सरसों के खेत कितने अच्छे, वहाँ पर देखो, क्योंकि वो टॉयज़ खरीदना चाहता था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. So the child saw there were dragonflies. वहाँ पे कुछ dragonflies थे, insects जो fly कर रहे थे। उनके जो शाइनिंग, यानी गॉडी का मीनिंग होता है जो शाइनिंग कलर होता है उनके विंग्स का, बहुत ही शाइनिंग पर्पल कलर का जो कलर बताया गया है, और वो फॉलो कर रहे थे। जो भी ड्रैगन फ्लाइज है वो ब्लैक बी को और बटरफ्लाई को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनको जो फ्लावर्स है, फ्लावर में जो स्वीटनेस होती है, स्वीटनेस को सक करना था, इसके लिए वो इधर उधर घूम रहे थे, अच्छे से फ्लाई कर रहे थे। सो दे वर लुकिंग, द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स वर लुकिंग दैट द ड्रैगन फ्लाइज एज वेल एज अदर इंसेक्ट्स वेर sucking the sweetness from the flower. The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it. So the child followed all the insects. So child को अच्छा लगा यार, ये जो सारे insects है, butterflies है, bee है, ड्रैगन फ्लाइज है, इनको वो फॉलो करता गया, उनके पीछे पीछे भागता गया, और उसने देखा कि एक जो ड्रैगन फ्लाई है कहीं पे रुक गया है, तो उसने उसको ट्राई किया कैच करने का, उसको पकड़ने का ट्राई किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट्स हैंड। सो यू नो वेन एवर वी ट्राई टू कैच बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाइज वी कैन नॉट कैच, वो उड़ जाते हैं बहुत बार। तो ऐसे ही हुआ, एक ड्रैगन फ्लाई रुक गया, बच्चे ने उसको ट्राई किया पकड़ने का, लेकिन वो फिर से उसके हाथों में से निकल के उड़ जाता है फ्लैप करते हुए। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। सो देन हर मदर कॉल अगेन, उसको फिर से बुला लेती है, एक इंस्ट्रक्टिव वे में उसको बोलती है उसकी मम्मी, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, जो फुटपाथ है वहाँ पे आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, उसको बुला लेती है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा किसी चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट होने के बाद वो वहीं पे खो जा रहा है अच्छे से, और उसके मम्मी पापा उसको फिर से बुला रहे हैं। सो ऐसे ही हो रहा है बार बार यहाँ पे। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. So he was running towards his parents very happily with abreast. Abreast क्या होता है कि साइड बाय साइड जाना, जो पूरे इंसेक्ट्स है उनके साइड बाय साइड वो भाग रहा था एक सेम वे में, लेकिन फिर से क्या हो गया, वो लिटिल इंसेक्ट्स और जो वॉर्म्स थी वहाँ पे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया फिर से। और अट्रैक्ट होने के बाद उसने देखा कि वो फुटपाथ की तरफ जहाँ पे जा रहा है वहाँ से कुछ इंसेक्ट्स टीमिंग आउट का मीनिंग होता है टू कम आउट, जो बाहर निकलना। दे वर कमिंग आउट, जो वॉर्म्स है और इंसेक्ट से बाहर निकल रहे थे उनके हाइडिंग प्लेस से, टू इन्जॉय द सनशाइन, उनको सनशाइन इन्जॉय करना था इसलिए वो बाहर निकल रहे थे। सो ये देख के बच्चा फिर से अट्रैक्ट हो जाता है, और मम्मी पापा ने उसको जो बुलाया है वो भूल जाता है फिर से, क्योंकि उसने देखा कि कुछ जो इंसेक्ट्स है वो बाहर निकल रहे हैं, उनकी तरफ वो देखने लगता है। सो अगेन, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। सो his parents again call him, they were sitting in a grow क्या होता है, जो जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज होती हैं उसको हम ग्रो कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ अ ट्री, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ अ ट्री होता है उसको हम ग्रो कहते हैं। सो दे वर सीटिंग ऑन द एज ऑफ द वेल एंड दे कॉल्ड हिम अगेन, कम चाइल्ड कम। सो ही रैन टुवर्ड्स देम, तो उधर वो भागने लगा। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो, and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hand. So what happens, he was going towards his parents, suddenly he could feel the flowers were falling down from the trees. So he again get attracted towards the flower and he forget that his parents are calling him, and he started
कैरिंग एंड गैदरिंग दिस पेटल्स इन हिज हैंड. सो उसके हाथों से फिर वो जो पेटल्स है फ्लावर के फिर से वो गैदर करने लगा, कलेक्ट करने लगा. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. So again he feels that there was a doves, there were doves and they were making sound. जो cooing का sound है ना वो doves का sound बताया गया. You know doves जो होते हैं ना एक white color के bird होते हैं. So उनको देखा उसने, वो कुछ आवाज़ें निकाल रहे थे. So जैसे उनके डैडी की तरफ या मम्मी की तरफ वो भाग रहा था, उसने देखा कि वहाँ पे कुछ बर्ड्स भी है एंड दैट दे वेर मेकिंग साउंड दैट इज़ क्विंग क्विंग. सो वो डव डव चिल्लाते हुए उनकी मम्मी की तरफ, पापा की तरफ वो भाग जाता है फिर से. एंड ही फॉरगेट दैट ही हैड कलेक्टिंग सम फ्लावर्स एंड देयर पेटल्स. तो फिर से भूल जाता है जो पेटल्स कलेक्ट कर रहा था और कलेक्ट करते करते उनको फेंक देता है. यानी बच्चों का ऐसे होता है कि एक चीज़ की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्होंने सडनली अगर दूसरी चीज़ देख ली सो उसकी तरफ भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और पहली जो चीज़ वो कर रहे थे छोड़ देते. बहुत बार ऐसे हमारे साथ भी होता है. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड इन द banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. So again they called, "Come child come." Why? Because he was just playing there near the banyan tree. banyan tree के पास वो खेलने लगा and he was जो कैपर्स होते हैं ना उसको हम बोल सकते हैं कि प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, कि इधर उधर ऐसे राउंड करके भागना, दौड़ना, या इधर एक पैर दूसरा पैर इधर करके ऐसे दौड़ते रहना, भागना, राउंड लेना banyan tree को. सो banyan tree के इर्द गिर्द घूमने लगा. सो उसको फिर से वहाँ पे बुलाने लगी. एंड उसके बाद जो वहाँ पे फुटपाथ था और मस्टर्ड फील्ड थी उसके बाजू में ही उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुला रहे, उसको बार बार बोल रहे कि चलो आ जाओ, अभी रिटर्न आ जाओ. बट ही वॉज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सच अ थिंग्स एंड ही वॉज इंजॉइंग देयर. सो वो उसको इंजॉय करने लगा उस फील्ड में. एज दे नियरर द विलेज the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by confusion of the world he was entering. So as they nearer the village, जैसे वो विलेज के पास आते, the child saw so many footpaths full of throngs means क्राउड, ह्यूज क्राउड बोल सकते हैं उसे हम. और कन्वर्जिंग का मीनिंग होता है गैदरिंग, यानी बहुत सारे लोग जहाँ पे आ जाते हैं एक जगह पे. ऑफ द वर्लफुल ऑफ द फेयर. सो वो जो वर्लफुल होता है ना उसका भी मीनिंग होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं. सो इस प्रकार से उसने बोला कि एंड फेल्ड एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड. रिपेल्ड इट इज़ द फीलिंग ऑफ फियर and fascinated means attraction. So he had both type of feelings. He was fearing when he saw so many people there, and he was attracted towards so many things which were selling there. जो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें को बेचा जा रहा था, तो वो देख के वो फिर से अट्रैक्ट भी हो जाता है. A sweetmeat seller hawk gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and golds. So there was a sweet seller who was shouting gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi. चिल्ला रहा था बहुत सारी बर्फीज के नाम पे जो बहुत सारे स्वीट्स थे. he was at the corner of the entrance पे था वो. and he had made one architecture of sweets. बहुत सारे कलर के स्वीट्स का एक आर्किटेक्चर बनाया था. आर्किटेक्चर क्या होता है, उसने जो हीप बनाया था ना, यानी कुछ बड़ा हीप कुछ छोटा हीप, एक आर्किटेक्चर बैकग्राउंड की तरह. एक जो इंजीनियर बना था आर्किटेक्चर्स, यानी बहुत सारा जो स्वीट्स रखा था उसने एक अच्छी सी डिज़ाइन में रखा हुआ था, और उस पर सिल्वर और गोल्ड कलर के जो लीव्स लगाए हुए थे. यानी आप देखोगे किसी भी स्वीट्स पे आप बीकानेर में जब जाते हो तो सिल्वर या गोल्ड कलर का कुछ ऊपर से लगा हुआ होता है. सो उस प्रकार से वहाँ पे वो स्वीट्स देखता है. So the child saw some sweets there. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. So when he saw there was a barfi, barfi was his favorite sweet. So his mouth watered for the barfi. So उसके मुंह में तो पानी आ गया जब उसने बर्फ़ी को देख लिया. बच्चों को तो ज़्यादातर स्वीट्स पसंद आते हैं, हमें पता है. आपको भी पसंद आते होंगे स्वीट्स.
सो जैसे वो उसने स्वीट देखा उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचता है कि ये स्वीट्स मुझे मिलने चाहिए. I want that बर्फी. He slowly murmured. So he murmured that, murmur means low voice में उसने बोला कि I want that बर्फी. But he half knew as he begged that this plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. So he knew that his father will not permit him to buy this thing. Actually यहाँ पे जो plea का meaning होता है कि request. सो ही न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड बी रिजेक्टेड. जो हीडेड का मीनिंग होता है रिजेक्ट करना और टू पेड अटेंशन, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसे पता था पहले से ही. बिकॉज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स विल से दैट ही इज़ ग्रीडी बिकॉज ही इज़ आस्किंग फॉर स्वीट. इट मीन्स ही इज़ ग्रीडी, वो लालची है, उसको बहुत खाना पसंद है, ऐसा उसके पेरेंट्स बोलेंगे. इसलिए ही डिडेंट वेट फॉर एन आंसर एंड डायरेक्टली मूड ऑन. उसने तो आंसर का वेट ही नहीं करा, खाली उसने बोल दिया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए और आगे निकल लिया. क्योंकि उसे पता था भाई मुझे मेरे डैडी तो लेके देने वाले नहीं है. क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना पहले से नाप लेते हैं या भाप लेते क्या होने वाला है फ्यूचर में. और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता होता है पापा तो लेके देंगे नहीं, लेकिन वो नीचे लेट लेट के फिर रोने लगते हैं, बहुत चिल्लाते हैं. या कुछ लोग तो फिर जो खिलौना पसंद आया उसको उठा के वो बच्चा भागने लगता है, क्योंकि उसको पता है खिलौना उठा के मैं भाग के जाऊंगा तो डैडी को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, फिर वो दुकानदार तो उसको छोड़ेगा नहीं. सो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ चाइल्ड वी कैन सी. बट इन दिस स्टोरी द चाइल्ड इज सो सिंपल. Simply his parents are rejecting and he is expecting everything, and he knew that his parents will not buy anything for him. So a flower seller hawked a garland of gulmohar. So he was calling, there was a flower seller also, he was shouting gulmohar, a garland of gulmohar. Garland क्या होता है? Garland का मीनिंग होता है a necklace of flower. फ्लावर का जो नेकलेस होता है, हार एक हम बोलते हैं, और gulmohar is a flower. So he was shouting gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. So you know that the child, whenever he is seeing anything, he is demanding that. जो भी देख रहा है उसको डिमांड कर रहा है. पहले स्टार्टिंग में उसको स्वीट पसंद आई, स्वीट के लिए डिमांड कर दिया. अब उसको जो गार्लैंड पसंद आई गुलमोहर की, वो गार्लैंड के लिए डिमांड कर रहा है, मुझे ये चाहिए. सो ऐसे ही उसको, बट उसने वो जो लो वॉइस में बोल रहा है, क्योंकि बहुत ज़ोर से नहीं बोल रहा है या ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है या डिमांड भी कर रहा है, तो रिक्वेस्ट के हिसाब से कर रहा है, बहुत ही लो वॉइस में. ही इज़ मर्मरिंग दैट ही इज सेइंग आई वांट दैट गार्लैंड. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वेर चीप. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. सो ही न्यू दैट ऑलरेडी हिज फादर विल से दैट दिस फ्लावर इज चीप, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, डोंट बाय इट. इसको खरीद हमें बाय नहीं करना है हमें, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही चीप है, बहुत अच्छे नहीं है. ऐसा उसका पेरेंट्स उसको बोलेंगे, ये उसे पहले से ही पता था. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. So after that he saw there was a man who had one pole and there was so many balloons on that pole. बहुत सारे balloons वहाँ पे थे, फ्लाई कर रहे थे, येलो कलर के, रेड कलर के या ग्रीन कलर के. सो ही वॉज ओवरवेलम्ड विद द डिज़ायर. उसको बहुत पसंद आ गए फ्लावर्स, एंड ही वॉन्टेड टू कीप सम बलून्स. सॉरी मैं फ्लावर बोल दिया था शायद. सो उसको बलून्स पसंद आ गए थे और वो बलून रखना चाहता था, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी बलून रखने की. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच अ टॉयज. सो ही वॉकड ऑन द फर्दर. So he knew that his parents will not buy balloon also. Already he knew that his parents will say greedy if you will buy sweets. His parents will say these are cheap flowers if you will buy. And his parents will say that you are too old to play with such a things, with such a balloon, so you don't buy the balloon. So his parents were rejecting everything he wishes. There was nothing his parents buy for him. उसके लिए कुछ भी खरीद के नहीं देते उसके पेरेंट्स. सो एवरीथिंग वे रिजेक्टेड. द नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड सुन. सो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे. सो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, तब तक के लिए बाय. डू स्टडी.